السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آج نورانی قاعدہ میں ہم لوگ پڑھیں گے را متحرک اور را ساکن کے 10 قواعد۔ یعنی آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ را جو ہے کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور را کو کب باریک پڑھتے ہیں، اس کے 10 قواعد ہیں۔ آئیے ان 10 قواعد کو جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا قاعدہ، اگر را کے نیچے زیر ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ را کے نیچے اگر زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک مثال کے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے را ہے اور را کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی حرکت ہے، تو اس را کو ہم لوگ باریک پڑھیں گے۔ رجالن، اس را کو باریک پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی، بشرط کہ را ساکن کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ خص ضغطن قز میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ یعنی را ساکن، یہاں پر دیکھیے مثال کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے را ہے اور را کے اوپر میں جو حرکت ہے وہ جزم کی حرکت لگی ہوئی ہے۔ اب جب را ساکن ہوگا تو را کے پچھلے والے جو حرف ہوں گے اس کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ را ساکن ہے، اس کے پچھلے والے حرف پر جو حرکت ہوگی اس کو دیکھنا ہے۔ تو پچھلے والے حرف میم ہے، میم پر جو حرکت لگی ہوئی ہے یہ زیر کی حرکت ہے۔ تو ایسی حالت میں را کو ہم لوگ باریک پڑھیں گے را کو۔ مربتن۔ قاعدہ نمبر تیسرا، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی، بشرط کہ را ساکن کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ جیسے یہاں پر دیکھیے مثال میں کہ را ساکن ہے، یا آیا ہے اور یا بھی ساکن ہے، تو اس کے ہم لوگ را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن ہے، اس سے پہلے یا آیا ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اور اس را ساکن کے بعد اگر کوئی حروف مستعلیہ نہیں ہونا چاہیے، اگر اس را کے بعد یہاں پر کوئی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو را کا قاعدہ بدل جائے گا۔ چوتھا قاعدہ، را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو تو اس سے بھی پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس حرف پر زیر ہو تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی۔ جیسے یہاں پر دیکھیے بکر لکھا ہوا ہے، تو چوتھا نمبر قاعدہ میں یہ بتا رہا ہے کہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے کاف ہے، وہ بھی ساکن ہے۔ تو ایسی صورت میں جب دو ساکن اکٹھا ہو جائے تو اس سے پچھلے والا جو حرف ہے
उस हर्फ पर लगी हुई हरकत को देखना पड़ेगा। रा साकिन है तो रा के पिछले वाले हर्फ को देखा, वो भी साकिन है। पिछले वाले हर्फ साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पर हरकत जो लगी हुई उसको देखना है। तो यहाँ पर ज़ेर अगर लगी हुई है तो इस रा को बारीक पढ़ना होगा, तो इसको बारीक पढ़ना होगा। इसको पढ़ेंगे बिक्र, बिक्र, बिक्र। पांचवा कायदा, रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा पुर पढ़ी जाएगी, यानी रा को मोटा पढ़ेंगे। आइए मिसाल के ज़रिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए रब्बा का है, रब्बा का, यहाँ पर रा के ऊपर हरकत जो है उस पर क्या है, हरकत ज़बर है। तो ऐसी सूरत में रा को हम लोग मोटा पढ़ेंगे, रब्बा का। और यहाँ पर देखिए रा है, रा के ऊपर हरकत जो लगी हुई है वो पेश है। तो ऐसी हालत में रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। रुबामा, रुबामा, रुबामा पढ़ेंगे। छठा कायदा, रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर पढ़ी जाएगी। रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो रा साकिन पुर पढ़ी जाएगी। यहाँ पर मिसाल देखिए, रा साकिन है और उससे पहले हर्फ पर हरकत जो देखते हैं वो ज़बर है। जब रा साकिन हो तो पिछले वाले हर्फ पर देखना है। अगर पिछला वाला हर्फ पर ज़बर हो तो रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। जैसे बर्दन, बर्दन। यहाँ पर दूसरा कायदा देखिए, रा साकिन है तो पिछले वाले हर्फ पर देखा तो पिछले वाला हर्फ पर पेश की हरकत है, तो इस रा को हम लोग मोटा पढ़ेंगे। कुरआनुन, कुरआनुन। सातवां कायदा, रा साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो तो उससे भी पहले वाले हर्फ को देखा जाएगा, और उस हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो रा साकिन पुर पढ़ी जाएगी। यहाँ पर मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए रा है, रा साकिन है और रा साकिन से पहले जो हर्फ है दाल उस पर भी साकिन है, तो दो साकिन यहाँ पर मिल गया। तो अब दो साकिन यहाँ पर मिल रहा है तो इस दाल से पहले वाले हर्फ को देखना पड़ेगा कि दाल से पहले वाला हर्फ पर जो हरकत लगी हुई है वो क्या हरकत है। अगर उस पर दाल उस हर्फ से पहले दो साकिन हर्फ से पहले अगर हरकत पेश या ज़बर हो तो रा साकिन को पुर पढ़ेंगे, इस रा को मोटा करके पढ़ेंगे। जैसे लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र। यहाँ पर ज़बर की मिसाल थी और यहाँ पर पेश की मिसाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए रा साकिन है, रा साकिन से पहले पीछे वाले हर्फ पर गए तो यहाँ भी सीन जो है साकिन है, तो सीन जब साकिन है तो उससे पिछले वाले जो हर्फ है उस हर्फ पर जो हरकत लगी हुई है उस हरकत को देखना है। अगर पेश है तो रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा करके पढ़ेंगे। यहाँ पर आइन है, आइन पर पेश लगी हुई है तो इस रा को मोटा करके पढ़ेंगे। जैसे बेकुमुल उसर,
बेकुमुल उसर। आठवां कायदा, रा साकिन से पहले ज़ेर आर्जी हो तो रा साकिन पुर पढ़ी जाएगी। मिसाल के ज़रिया समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इरज, इरहम और इर तब तुम है, तो रा यहाँ पर रा साकिन है। रा साकिन से पहले देख रहे हैं कि रा साकिन से पहले ज़ेर है, फिर भी रा को मोटा पढ़ने को कहा गया है। क्यों? इसलिए कि रा साकिन है और रा साकिन से पहले जो हमज़ा आया है, हमज़ा के नीचे ज़ेर आया है, वो हमज़तुल वस्ल है। यानी जब पीछे वाले हर्फ से जब रा को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये जो हमज़ा होते हैं, हमज़ा क्या होते हैं, ये ड्रॉप हो जाते हैं। यानी ड्रॉप का मतलब क्या है कि ये कभी पढ़े जाते हैं और कभी नहीं पढ़े जाते हैं। ऐसी सूरत में रा को मोटा करके पढ़ना पड़ता है। जैसे इरज, इरहम, इरतब तुम। नौवां कायदा, रा साकिन से पहले ज़ेर हो लेकिन ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो भी रा साकिन पुर पढ़ी जाएगी। मिसाल के ज़रिया देखते हैं कि यहाँ पर एक कलमा मन है और मन के बाद एक कलमा यहाँ पर इर्तज़ा है, तो ये दो कलमे हो गए। मन एक कलमा है और इर्तज़ा दो कलमा है। तो ऐसी सूरत में रा को मोटा करके पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे कि यहाँ पर रा जो है ये दूसरे कलमे में मौजूद है और मन जो है एक दूसरा कलमा है। ये जो नून के नीचे ज़ेर आपको नज़र आ रही है, ये ज़ेर मिलाकर पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मनिर तज़ा, इसको पढ़ेंगे मनिर तज़ा, रा को मोटा करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर रब्बिरजिऊ, यहाँ पर देखिए रा साकिन है, तो रा जो साकिन है ये इरजिऊ एक दूसरा कलमा है और रब्बी जो है यहाँ पर दूसरा कलमा है। यानी एक ये इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। ये रब्बी एक अलहदा कलमा है और इरजिऊ एक दूसरा कलमा है। आप जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो ये दूसरा कलमा हो गया और रब्बी एक दूसरा कलमा हो गया। तो ऐसी सूरत में रा को मोटा करके पढ़ना है। जैसे रब्बिरजिऊ, रब्बिरजिऊ। 10वां कायदा, रा साकिन के बाद उसी कलमा में हुरूफ़े मुस्तआलिया में से कोई हर्फ हो तो रा साकिन हर हाल में पुर पढ़ी जाएगी, यानी मोटा करके पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा कायदा लागू हो रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि रा साकिन है तो रा साकिन के पिछले हर्फ को नहीं देखना है, बल्कि रा साकिन है तो रा साकिन के बाद रा के बाद वाले हर्फ को देखना है। ओह क्या है, अगर हुरूफ़े मुस्तआलिया में से हो गए तो रा को मोटा करके पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए रा साकिन है, उसके बाद स्वाद जो है हुरूफ़े मुस्तआलिया में से, तो मोटा करके स्वाद को पढ़ते हैं। तो इसको रा को भी क्या करेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे, मिर्सादिन, मिर्सादिन। यहाँ पर दूसरा कायदा देखिए, रा साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ को अब नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है कि रा साकिन के बाद हुरूफ़े मुस्तआलिया, यहाँ पर जो है रा साकिन के बाद क़ाफ है, क़ाफ क्या है, मोटे हरूफ में से है। इसको क़ाफ को मोटा करके पढ़ते हैं, इसीलिए इस रा साकिन को मोटा करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये पिछले वाले ज़ेर जो है इस कायदा को नहीं
استعمال کریں گے، بلکہ اب یہ قاف والا قاعدہ جو ہے حروف مستعلیہ اس کے بعد آیا ہے، اس قاعدہ کو استعمال کریں گے، جیسے فرقتن، فرقتن، اور یہاں پر دیکھیے را ساکن ہے تو پیچھے حرف دیکھا، پچھلے والے حرف پر دیکھا تو زیر ہے، لیکن جیسے ہی را ساکن کے بعد والے حرف پر دیکھا تو حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف آیا تو، اب تو کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ قاعدہ جو ہے پچھلے حرف پر زیر ہے، یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا، اب یہ قاعدہ لاگو ہوگا، تو موٹے حرف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اب را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، جیسے قرطاسن، قرطاسن،